تاریخ انسانی میں ایک داستان ایسی بھی ہے جو اندھیروں سے شروع ہو کر روشنی پر ختم ہوئی۔ دنیا کے ہر قصے کا ایک ہی انجام ہوتا ہے، یا تو جیت یا پھر ہار۔ لیکن یہ داستان ہے ایک ایسے بچے کی جسے اپنوں نے کنویں کی تہ میں پھینکا، مگر تقدیر نے اسے مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ سفر جس نے دنیا کو صبر کے معنی سکھائے۔ محبت، حسد، سازش، صبر اور بادشاہت۔ قرآن اسے کہتا ہے احسن القصص، یعنی قصوں میں سب سے بہترین۔ بابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تم سے حسد کریں گے۔ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں۔ یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور دیس میں پھینک آؤ تاکہ باپ کی توجہ صرف ہم پر ہو جائے۔ ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ کھائے پیے اور کھیلے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ فکر نہ کریں ابا جان، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے گا۔ اے میرے رب، تو ہر غریب کا ساتھی اور ہر اکیلے کا مددگار ہے۔ بسم اللہ، پانی کھینچو۔ یا بشری ھذا غلام، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اسے چھپا لو، یہ ہمارا تجارتی مال ہے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تم اسے ہم سے خرید لو۔ ہم اسے چند درہموں کے عوض خریدتے ہیں۔ اور یوں تقدیر یوسف کو کنعان کی گود سے نکال کر مصر کے تخت کی طرف لے چلی۔ کون خریدے گا اس چاند جیسے لڑکے کو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ اس لڑکے کا خیال رکھنا، یہ بڑا شریف اور لائق لگتا ہے، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ معاذ اللہ، میرا رب بہت اچھا ہے، میں ظالموں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ ہاشا اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ وہی ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ اگر اس نے اب بھی میری بات نہ مانی تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اے نوجوان، ہم تمہیں نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتاؤ۔ میں نے آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کی ایک ٹوکری ہے اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی حقیقت بتاؤ۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ جو کھانا تمہیں ملنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اے میرے ساتھیوں، سن لو، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو دوبارہ شراب پلائے گا
यानी रहा होकर बहाल हो जाएगा। रहा दूसरा तो उसे सूली दी जाएगी और परिंदे उसका सर नूच कर खाएंगे। फैसला हो चुका इस बात का जो तुम पूछ रहे थे। जब तुम रहा हो जाओ और अपने बादशाह के पास जाओ तो उसके सामने मेरा जिक्र करना था। ए दरबारियों, मैंने 7 मोटी गायें और 7 दबली गायें देखी हैं। ए दरबारियों, मुझे इसकी ताबीर बताओ अगर तुम इल्म रखते हो। मैं आपको इसकी ताबीर बताने वाले शख्स का पता देता हूं। मुझे कैद खाने जाने दीजिए। यूसुफ! ऐ सच्चे इंसान, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताओ। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 दूसरी सूखी हुई। मुझे इसकी ताबीर बताओ। तुम लोग लगातार 7 साल तक खूब खेती बाड़ी करोगे। ये खुशहाली के साल होंगे। फिर उसके बाद 7 बहुत सख्त साल आएंगे जो उस जखेरे को खा जाएंगे जो तुमने जमा किया होगा, सिवाय थोड़े से हिस्से के जो तुम बीज के लिए बचा लोगे। फिर उन सख्त सालों के बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी और वो उसमें रस निचोड़ेंगे। तो उन पहले 7 सालों में जो फसल तुम काटो उसे उसकी बालियों समेत रहने देना, सिवाय उस थोड़े से हिस्से के जो तुम्हारे खाने के काम आए। ऐ यूसुफ, बादशाह ने आपको बुलाया है। अपने रब बादशाह के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। अब हक जाहिर हो गया। मैंने ही उसे फसलाया था। वो सच्चों में से है। इसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने लिए खास करूंगा। और यूं अल्लाह ने यूसुफ को जमीन में इख्तिदार बख्शा। मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। मैं हिफाजत करने वाला और इल्म वाला हूं। ये मेरे भाई हैं। अगली बार अपने सौतीले भाई बनियामीन को ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। अब्बा जान, हम पर आइंदा के लिए गल्ला रोक दिया गया है। बस आप बुनियामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम गल्ला ला सकें। हम उसके मुहाफिज हैं। क्या मैं इसके बारे में तुम पर वैसा ही एतबार करूं जैसा इससे पहले उसके भाई यूसुफ पर किया था? मैं इसे हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह को गवाह बनाकर पक्का अहद न करो कि तुम उसे जरूर वापस लाओगे, सिवाय इसके कि तुम सब ही घेर लिए जाओ। अल्लाह का अहद करते हैं हम कि इसे वापस ले आएंगे। ऐ अजीज मिसार हक, हम अपने वादे के मुताबिक भाई को ले आए हैं। तुमने अपना वादा पूरा किया। तुम लोगों को मेहमान खाने में ठहराया जाए और तुम्हारी खूब खातिर मदारात की जाए। ए काफले वालों, रुको। तुम लोग तो चोर हो। तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है? हमें बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा। अल्लाह की कसम, तुम जानते हो कि हम जमीन में फिसाद करने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। अगर उसने चोरी की है तो उसके भाई यूसुफ ने भी पहले चोरी की थी। अब ये लड़का बुनियामीन हमारा गुलाम है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने बाप से क्या अहद किया था और उससे पहले यूसुफ के मामले में क्या कोताही की थी? मैं इस सरजमीन से नहीं हटूंगा जब तक मेरा बाप मुझे इजाजत ना दे या अल्लाह मेरे हक में फैसला ना कर दे। तुम लोग वापस जाओ। ए अब्बा जान,
आपके बेटे ने चोरी की है और हमने वही गवाही दी जो हम जानते थे। हम गैब का हाल नहीं जानते थे। आप इस बस्ती वालों से पूछ लें जहां हम थे, और इस काफले से पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है। बस अब सब्र ही बेहतर हैगा। करीब है कि अल्लाह इन सब को मेरे पास ले आए। बेशक वो इल्म और हिकमत वाला है। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। जो कुछ ये करते रहे उस पर गम ना करना। या अस्फा अलैया। अल्लाह, आप तो बस यूसुफ ही को याद करते रहेंगे यहां तक कि गुल जाएं या हलाक हो जाएं। मैं अपनी परेशानी और गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। ऐ मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ और उसके भाई की पूरी तरह टवा लगाओ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं देने को, बस ये थोड़ा सा नाकिस सामान है। देखते हैं अजीज मिस्र इसे कबूल करते हैं या नहीं। बाप के हुक्म पर वो तीसरी बार मिस्र की तरफ रवाना हुए, दिलों में उम्मीद और खौफ लिए हुए। क्या तुम्हें मालूम है तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? क्या तुम ही यूसुफ हो? मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। आज तुम पर कोई मलामत नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ करे। बेशक मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम। आप अभी तक इसी पुरानी गलतफहमी में और यूसुफ की याद में मुब्तला हैं। मगर वो गलतफहमी नहीं थी, वो नबुव्वत की खुशबू थी जो हवाओं के दोष पर आ रही थी। क्या मैं तुम्हें नहीं कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? चलो मिस्र चलते हैं। ऐ मेरे बाप, ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। अल्लाह ने कुरान में इसे अहसनुल क़िसस यानी किस्सों में सबसे बेहतरीन कहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें इंसानी जिंदगी का हर रिंग मौजूद है। मोहब्बत, हसद, धोखा, जुदाई, साजिश, सब्र और बादशाहत। ये वाहिद किस्सा है जो बिखरने से शुरू होता है और समटने पर खत्म होता है। हमने सीखा कि हकीकी कामयाबी हुस्न व जमाल या दौलत में नहीं, बल्कि किरदार की पाकीज़गी में है। यूसुफ ने अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ा तो अल्लाह ने बदले में उन्हें पूरी सल्तनत कदमों में दे दी। ने सीखा कि सब्र जमील किया है। इंसान तदबीर करता है, भाई कुएं में फेंकते हैं, लेकिन अल्लाह की तदबीर सब पर गालिब आती है। और सबसे बड़ा सबक माफ कर देना है। ताकत रखने के बावजूद अपने सतमगर भाइयों को माफ कर देना ही आती है, लेकिन अल्लाह की तदबीर सब पर गालिब आती है। जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कुआं, कैद खाना और गुलामी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बेशक अल्लाह अपने काम को पूरा करके रहता है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।